video lecture of units and measurement. Today I am going to explain about the measurements. Units already completed in previous lectures. So now today I will explain about the measurements. In this chapter you have to learn three physical quantity like length, mass and time. You will be learn to measure three physical quantity length, mass and time. Means you will be learn how to measure very small length. Very small length means how to measure the size of atom. कोई atom है तो उसकी size कैसे measure करोगे, उसकी diameter कैसे measure करोगे. Or you can learn the distance between two planets or distance between sun and earth, like this much large distance also and small distance also. Same way for mass also you will be learn how to measure small mass also and large mass also for time also. So in measurements we will discuss only this three physical quantity, how to measure this three physical quantity. Today I am going to explain about the length measurement. For any type of measurement, basically there are two methods, direct methods and indirect method. Direct method means when we measure any physical quantity by using any device or instrument, then that type of method is known as direct method. And like suppose if I want to measure the length of this marker pen, then I can use meter scale. By using meter scale I can measure the length of this marker pen. If I want to measure the length of this board or whatever, then also I can use the meter scale and I can measure the length. So this method, when I use a meter scale and measure the length, that is direct method. But in some cases, as I discussed earlier also, suppose I want to measure the distance between sun and earth. I want to measure the distance between earth and moon. Then it is not possible to use any device. ऐसी कोई device ही नहीं है जिससे हम ये measurement कर सके. तो उसके लिए हमें कौन सी method apply करनी पड़ेगी? Indirect method. Indirect method is depend on your logic कि आप कौन से logic से आप वो measure करते हो. आपके पास डिवाइस नहीं है और मीन्स एक पर्टिकुलर मेजरमेंट के लिए ऐसी कोई डिवाइस अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो आप कौन सा लॉजिक यूज़ करके कैसे मेजर करोगे, इट इज़ डिपेंड अप टू यू. दैट आई विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स. फर्स्ट आई वांट टू एक्सप्लेन अबाउट द डायरेक्ट मेथड. इफ आई वांट टू मेजर एनी लेंथ, देन विच आर द डायरेक्ट मेथड बाय विच वी कैन मेजर द लेंथ. First device which we are having, that is meter scale. By meter scale all of you are aware very well. You are having that in your geometry bags also. In geometry box you are having meter scale. Meter scale will be like this, 1 centimeter, 2 centimeter up to like this. So if you have observed meter scale, तो उसमें 0 to 1 centimeter के बीच में 10 divisions होते हैं और each division हम मिनिमम ये मीटर स्केल से कितना मेज़र कर सकते हैं, इतने डिवीज़न जितना, एक डिवीज़न जितना हम मेज़र कर सकते हैं मिनिमम मेजरमेंट. तो मिनिमम मेजरमेंट पॉसिबल बाय दिस डिवाइस इज व्हाट, इक्विवेलेंट टू 1 डिवीज़न ऑफ द स्केल. 1 डिवीज़न से छोटी लेंथ है, मीन्स इतना है सपोज, देन आई कैन नॉट मेजर एग्जैक्टली बाय दिस मीटर स्केल. तो मिनिमम 1 डिवीज़न जितनी लेंथ वाला कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उतना मैं मेजरमेंट ये मीटर स्केल से कर सकती हूँ. तो लिस्ट काउंट ऑफ LC इज नोन एज व्हाट, लिस्ट काउंट. लिस्ट काउंट मीन्स minimum measurement possible by this device. So least count of this scale is what, equivalent to 1 division. 1 division की वैल्यू कितनी होगी, दिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर.
1 सेंटीमीटर में कितने डिविजन्स है? 10 डिविजन्स. तो 1/10 सेंटीमीटर मीन्स 0.1 सेंटीमीटर. If I convert this into SI unit, then centimeter into meter, if I will convert this, I can write 1 into 10 to the power minus 1 centimeter. So if I convert this into meter, then multiply by what? 10 to the power minus 2. So this is equal to what? 1 into 10 to the power minus 3 meter. So least count of मीटर स्केल इज व्हाट? मिनिमम मेजरमेंट हम कितना कर सकते हैं? 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर जितना, और यू कैन से 1 मिलीमीटर. 1 मिलीमीटर आई एक्सप्लेन इन प्रीवियस लेक्चर. मिली मीन्स व्हाट विल कम? 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर. तो मिनिमम मेजरमेंट इतना हो सकता है. मैक्सिमम मीटर स्केल में यहाँ पे जनरली हम जो रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं उसमें 10 टू द पावर 2 मीटर. So meter scale तो you know very well. Let's count of it. Meter scale is what? 10 to the power minus 3 मीटर. उससे हम मिनिमम इतना मेज़र कर सकते हैं. पर अगर मुझे कोई पेपर की थिकनेस, आपके पास अगर कोई पेपर है, now suppose this is one paper. If I want to measure the thickness of this paper, तो look at here. इसकी मैं थिकनेस मेज़र करूँ तो यहाँ तक में कंप्लीट हो जा रहा है स्केल पे, दिस मच. नाउ दिस इज बिटवीन 0 to 1 मिलीमीटर. तो मैं इसको क्या कंसिडर करूँ? 0.2 मिलीमीटर या 0.5 मिलीमीटर, 0.6 मिलीमीटर या 0.3? एग्जैक्टली आई कांट से बाय दिस मेजरमेंट. तो इन दिस केस टू मेजर द थिकनेस ऑफ पेपर, और like this much thin wire is there, this is one thin wire. If I measure the thickness of it, then also look at here, it is not coming between, it is, the thickness means diameter of this wire is not equal to 1 millimeter, it is less than 1 millimeter. तो जो लेंथ लेस देन 1 मिलीमीटर वाली हो वो लेंथ हम मीटर स्केल से नहीं मेज़र कर सकते. तो उसकी एक लिमिटेशन है कि वो मिनिमम कितना मेज़र कर सकता है? 1 मिलीमीटर जितना. तो उससे कम मेज़र करना हो तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? वर्नियर कैलिपर्स. तो लेस देन 1 मिलीमीटर जिसकी लेंथ हो उसके लिए वी आर यूजिंग द अनदर डिवाइसेस लाइक वर्नियर कैलिपर्स. वी कैन यूज स्क्रू गॉज ऑल्सो. वर्नियर कैलिपर्स आई एम शोइंग यू. ऐसी एक डिवाइस है, इसमें 3 हुक्स आते हैं. बाय ईच एंड एवरी हुक हैज़ डिफरेंट फंक्शन, और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको यूज़ कर सकते हैं. आप प्रैक्टिकल में सीखोगे कि कैसे उसको यूज़ करना है. बट यहाँ पे वर्नियर स्केल भी होता है और उसमें कुल कैलकुलेशन होता है. वो कैलकुलेशन करके आप लेस देन 1 मिलीमीटर वाली मेजरमेंट भी कर सकते हो. दैट यू विल बी लर्न इन प्रैक्टिकल्स इन अ लैब हाउ टू मेजर इट. सो वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है? ये जो 0 to 1 मिलीमीटर है उसको वापस 10 डिवीज़न में डिवाइड कर दिया होता है. मीन्स 0 to 1 जो हमारा ये 0 to 1 मीटर स्केल में उसको वापस 10 डिवीज़न में डिवाइड कर दिया है. तो ईच डिवीज़न की वैल्यू क्या होगी? अगेन 0 to 1, तो 1 इतने में 0 से 1 में 10 डिवीज़न है, तो एक डिवीज़न की वैल्यू क्या होती? 1/10 मिलीमीटर. तो 0.1 मिलीमीटर. 0.1 millimeter means 1 into 10 to the power minus 1 millimeter. Milli means 10 to the power minus 3 means 10 to the power minus 4 meter. So when we use the vernier caliper, then our least count, or you can say minimum measurement, is 10 to the power minus 4 meter. Means now I can measure exactly
like 0.1 millimeter or 0.2 millimeter up to 0.9 millimeter. ये मेजरमेंट हम कर सकते हैं जो मीटर स्केल से पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए इसका लेस्ट काउंट क्या होता है 10 to the power -4 meter. So as I explained, by meter scale we can measure 1 millimeter. Minimum measurement is what 1 millimeter, or its least count is what 1 millimeter, means 10 to the power -3 meter. But in real life sometime we need to measure length which is less than 1 millimeter also. जब ऐसी लेंथ मेजर करनी होती है then we are using what vernier calipers. As I explained, वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है, ये जो 1 मिलीमीटर का भी 10th पार्ट, मीन्स ये जो 0 to 1 है उसके भी 10 पार्ट करते हैं. ऐसे 0 to 1 मिलीमीटर है तो उसके भी 10 पार्ट्स करके एक डिवीज़न की जो वैल्यू होती है वो मेज़र कर सकते हैं. तो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स क्या है 1/10 मिलीमीटर, मीन्स 0.1 मिलीमीटर और 10 to the power -4 meter. This is the least count of vernier calipers. तो वर्नियर कैलिपर्स से हमको 0.1 मिलीमीटर से लेके 0.9 मिलीमीटर तक का भी मेजरमेंट कर सकते हो, पर ज़रूरी नहीं कि हमका मिनिमम मेजरमेंट 0.1 मिलीमीटर ही हो. कभी हमें उससे कम मेजरमेंट वाला भी चाहिए. सपोज मेरे पास ये वायर है तो उसकी डायमीटर अगर मुझे मेज़र करनी है, दिस इज़ वेरी थिन वायर, तो उसके लिए मुझे ऐसा इंस्ट्रूमेंट चूज़ करना पड़ेगा जो 0.1 मिलीमीटर से भी लेस देन मेज़र कर सकता हूँ. मीन्स लेस देन 0.1 मिलीमीटर पॉसिबल हो मेज़रमेंट. तो उसके लिए we have to use another measuring device, that is screw gauge. This is the screw gauge. This is for your information. In practical you will learn how to measure the small length by using this device. इसमें एक स्क्रू होता है, उसको रोटेट करके आप इसको ओपन कर सकते हो, बीच में वायर रख के मेज़र कर सकते हो. यू विल लर्न होल मैथड इन अ लैब, पर एज यहाँ पे स्क्रू है और वो यूज़ करके हम कर रहे हैं इसलिए उसको स्क्रू गॉज बोलते हैं. स्क्रू गॉज में हम 1/100 मिलीमीटर जितना भी मेज़र कर सकते हैं. मीन्स ये जो स्केल में 0 to 1 मिलीमीटर था उसका 100 पार्ट भी हम मेज़र कर सकते हैं. तो 1/100 मिलीमीटर मीन्स 0.01 मिलीमीटर, और यू कैन से 10 to the power -5 मिलीमीटर. वो क्या होगा लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज. मेजरमेंट ऐसा हो कि 0.01 मिलीमीटर से लेके 0.99 मिलीमीटर, बाद में 1 मिलीमीटर, तो ऐसा मेजरमेंट हो, इतना छोटा हो, then we have to use what screw gauge और स्पेरोमीटर. स्क्रू गॉज और स्पेरोमीटर दोनों का लिस्ट काउंट सेम है, दो डिवाइस डिफरेंट है, उनका कंस्ट्रक्शन डिफरेंट वे से किया है और पर्पस भी डिफरेंट है. स्पेरोमीटर जब हमें कर्व्ड सरफेस मेज़र करनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और ऐसा कुछ मेज़र करना होता है, देन वी आर यूजिंग स्पेरोमीटर. एज फॉर प्लेन सरफेस और फॉर थिकनेस ऑफ वायर और हेयर वी आर यूजिंग व्हाट स्क्रू गॉज. अभी ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमारे पास हमें इतना ही मिनिमम छोटा लेंथ आए, उससे छोटा लेंथ भी आ सकता है. जैसे एटम की साइज़ है, कोई मॉलिक्यूल की साइज़ है, डायामीटर है, उसकी रेडियस मेज़र करनी है, ऐसा कुछ है, कोई बैक्टीरिया की साइज़ है, तो इन दैट केस वी हैव टू यूज़ व्हाट माइक्रोस्कोप. उसके लिए भी हमारे पास डिवाइस अवेलेबल है. दैट्स वाई दिस ऑल आर कमिंग इन डायरेक्ट मेथड. ये सब डिवाइसेस है बाय विच वी कैन मेजर द स्मॉल लेंथ ऑल्सो. तो माइक्रोस्कोप से कितना, उसका रेजोल्यूशन कितना है 10 to the power -7 मीटर.
विच माइक्रोस्कोप? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप वर्क्स बेस्ड ऑन लाइट. तो लाइट की जो वेवलेंथ है उसके बेस पे यहाँ पे हमको रेजोल्यूशन मिलता है 10⁻⁷ मीटर. देन अनदर माइक्रोस्कोप इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इट वर्क्स बेस्ड ऑन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन. सो उसका रेजोल्यूशन कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर जितना. तो these are the some devices by which we can measure the small length also. If you have observed, यहाँ से हमको कितना मिल रहा है? मैक्सिमम 10⁻2 मीटर और मिनिमम कितना मिल रहा है? 10⁻10 मीटर. तो इससे ज़्यादा अगर मुझे कुछ मेज़र करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करूँगी. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन one indirect method to determine molecular size. First I am explaining about the indirect method to measure the small size. Okay, so here we are trying to measure the molecular size of which acid? Oleic acid. Oleic acid की molecular size हम measure करेंगे. तो दिस इज़ वन इनडायरेक्ट मेथड. मीन्स लॉजिकली हमको सोच के करना है कि कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो हमने क्या किया है? पहले ऑलिक एसिड का 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लिया. मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब जितना ऑलिक एसिड टेस्ट ट्यूब में लेके हमने उसको किस में मिक्स किया? अल्कोहल में मिक्स किया डाइल्यूट करने के लिए. तो डाइल्यूट सॉल्यूशन हमारा टोटल सॉल्यूशन कितना है? 20 सेंटीमीटर क्यूब. 20 सेंटीमीटर क्यूब इज टोटल सॉल्यूशन. उसमें ऑलिक एसिड कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड कितना हो जाएगा? 1/20 सेंटीमीटर क्यूब. वाई वी आर डूइंग दिस? टू मेक द डाइल्यूट सॉल्यूशन. मीन्स ऑलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. वापस अगेन उसको डाइल्यूट करने के लिए क्या किया कि ये जो सॉल्यूशन था 20 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें से हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन लिया और वो अल्कोहल में ऐड करके अगेन 20 सेंटीमीटर क्यूब जितना दूसरा सॉल्यूशन बनाया. समझ में आ रहा है? पहले हमने ऑलिक एसिड 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया, उसको अल्कोहल में ऐड करके 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बनाया. ये जो 20 सेंटीमीटर क्यूब है उसमें ऑलिक एसिड तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ही है, उसमें से हमने वापस 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया सॉल्यूशन. वो सॉल्यूशन कैसा होगा? मिक्स होगा ना, ऑलिक एसिड और अल्कोहल दोनों मिक्स होंगे उसमें. वो सॉल्यूशन हमने अगेन अल्कोहल में ऐड किया और इतने अमाउंट में अल्कोहल लिया कि हमारा टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ? 20 सेंटीमीटर क्यूब अगेन. तो अभी ये जो 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन होगा उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड कितना होगा? पहले जो था इसमें उसमें 1/20 सेंटीमीटर क्यूब था. इतना कॉन्सेंट्रेशन वाला 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने अगेन अल्कोहल में ऐड करके 20 सेंटीमीटर क्यूब बनाया. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड कितना हो जाएगा? 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब. तो अभी जो नया जो सॉल्यूशन बना हमारा, सपोज ये 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, उसमें ऑलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 1/20 इंटू 20 मीन्स 1/400. मीन्स 400 सेंटीमीटर क्यूब अगर सॉल्यूशन है तो उसमें अल्कोहल ऑलिक एसिड कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब और बाकी का क्या होगा? अल्कोहल होगा. इतना डाइल्यूट कर दिया. डाइल्यूट क्यों किया वो मैं लास्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ. अभी ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास जिसमें ऑलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इतना कम है, वो जो सॉल्यूशन है 20 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें से हमने n ड्रॉप लिए. n ड्रॉप मीन्स टेस्ट ट्यूब में लेके हम कुछ n नंबर ऑफ ड्रॉप्स लिए. तो n नंबर ऑफ ड्रॉप्स हमने क्या किया? मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ. एक ऐसा वेसल लिया, बड़ा सा वेसल लिया, एक बड़ा सा वेसल लेके ऐसा एक बड़ा सा वेसल लिया, उसमें हमने वाटर फिल किया. ये
वाटर के ऊपर हमने लाइकोपोडियम पाउडर स्प्रिंकल किया। लाइकोपोडियम पाउडर मीन्स नथिंग, मीन्स आप कोई भी, ये एक्चुअली जो वुड होता है ना, वुड की स्किन का जो पाउडर होता है वो भी यूज़ कर सकते हो, उसको ही बोलते हैं। वो क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो सरफेस पे फ्लोट करे, इसलिए। मीन्स ऐसा कोई भी पाउडर जो सरफेस पे फ्लोट कर सके, ऐसा पाउडर आप ले सकते हो। उसको आप स्प्रिंकल कर लो तो सरफेस पे एक पाउडर का लेयर बन जाएगा, वाटर की सरफेस पे एक पाउडर का लेयर बन जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन था ऑलिक एसिड और अल्कोहल का मिक्स, उसमें से हम एन ड्रॉप लेके यहाँ से पॉर करेंगे, यहाँ पे डालेंगे। एक ड्रॉप का, सपोज एक ड्रॉप का वॉल्यूम V है, वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप इज V, तो वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप कितना होगा, NV। तो हम यहाँ से n ड्रॉप्स यहाँ पे डाल रहे हैं, तो कितना वॉल्यूम हम डालेंगे, NV सेंटीमीटर क्यूब जितना वॉल्यूम यहाँ पे डालेंगे। जब यहाँ पे डालेंगे तो क्या होगा, ये पाउडर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे सरफेस पे ये जो सॉल्यूशन है ना, उसका ऐसा सर्कुलर लेयर बन जाएगा। वाटर की सरफेस है, उसके ऊपर ऐसा सर्कुलर लेयर बन जाएगा। सर्कुलर लेयर बन गया, ये पाउडर इस साइड शिफ्ट हो जाएगा और ये जो हमारा सॉल्यूशन था वो हमने उस पर पॉर किया, उससे सर्कुलर थीन फिल्म बन जाएगी। अब ये जो फिल्म बनी वो कैसे बनेगी, मोनोमोलिकुलर। इट विल बी मोनोमोलिकुलर। मोनोमोलिकुलर मीन्स इतनी थीन फिल्म बनेगी कि एक मॉलिक्यूल ही होगा सरफेस पे। सरफेस की जो थिकनेस है, एक सरफेस पे एक ही मॉलिक्यूल होगा, मीन्स वो जो सरफेस की थिकनेस होगी वही मॉलिक्यूल की क्या होगी, साइज होगी। तो इनडायरेक्टली हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूल की साइज मिलेगी। पर अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब जो थीन फिल्म बनी उसकी थिकनेस मेजर करनी पड़ेगी। थिकनेस तो डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलिक एसिड है, तो उसका तो 10⁻⁻9 मीटर जितनी स्मॉल थिकनेस होगी मॉलिक्यूल की साइज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। ये जो सर्कुलर एरिया मिला हमें, वो एरिया तो हम मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करोगे, आइदर यूजिंग स्केल यूज करोगे तो डायामीटर मिलेगी या रेडियस मिल जाएगी। तो एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, πr²। सपोज रेडियस मिल गई तो एरिया इज इक्वल टू क्या, πr²। तो आपको इसका एरिया मिल जाएगा। यू नो वेरी वेल, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आएगा, एरिया इंटू थिकनेस, A इंटू T। तो T इज इक्वल टू वी कैन राइट वॉल्यूम अपॉन एरिया। T थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म इज इक्वल टू क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द थिन फिल्म अपॉन एरिया ऑफ द फिल्म। एरिया तो हमने मेजर कर लिया, ये R मेजर करके एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। वॉल्यूम तो हमें पता है क्योंकि हमने n ड्रॉप डाले हैं उसमें, तो कितना वॉल्यूम हमने यहाँ पे डाला है वो हमें पता है, दैट इज व्हाट NV सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम रिप्लेस कर दूँ। वॉल्यूम कितना है, NV, पर ये जो NV वॉल्यूम हमने डाला उसमें क्या होगा, ऑलिक एसिड भी होगा और अल्कोहल भी होगा। जैसे आप पॉर करोगे क्या होगा, अल्कोहल उड़ जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, सिर्फ ऑलिक एसिड बचेगा। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ऑलिक एसिड को अल्कोहल के साथ मिक्स किया था। तो बाद में यहाँ पे किसका लेयर होगा, सिर्फ ऑलिक एसिड का लेयर होगा। ऑलिक एसिड का लेयर होगा तो उसकी साइज थिकनेस मिलेगी आपको। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ थिन फिल्म मीन्स हमें पूरा जो हमने लिक्विड जो भी सॉल्यूशन डाला उसका वॉल्यूम नहीं लेना है क्योंकि अल्कोहल तो उड़ गया होगा। तो हमें किसका वॉल्यूम लेना पड़ेगा, सिर्फ ऑलिक एसिड का। तो हमने जो n ड्रॉप इसमें डाला वो टोटल वॉल्यूम कितना था, NV सेंटीमीटर क्यूब।
पर ये टोटल वॉल्यूम में ऑलिक एसिड कितना होगा, NV डिवाइडेड बाय व्हाट, 20 इंटू 20। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड इसमें कितना है, NV डिवाइडेड बाय 20 इंटू 20। तो वॉल्यूम ऑफ थिन फिल्म डिवाइडेड बाय व्हाट, NV डिवाइडेड बाय 20 इंटू 20 इंटू एरिया। एरिया क्या है आपका, सपोज यहाँ पे आपने जो रेडियस मेजर की उस हिसाब से मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू आर स्क्वायर। तो आपको अगर कोई न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ ड्रॉप्स दिए हैं, वॉल्यूम दिया है, रेडियस दी है, देन यू कैन कैलकुलेट द थिकनेस। थिकनेस क्या दिखाएगी यहाँ पे मोनोमोलिकुलर लेयर बन रहा है। मोनो मीन्स सिंगल, सिंगल मॉलिक्यूलर का एक लेयर बन रहा है। तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे एक एक मॉलिक्यूल ही होगा। तो जो थिकनेस ऑफ ये थिन फिल्म मिलेगी वही क्या होगी, थिकनेस ऑफ द मॉलिक्यूल। मीन सपोज यहाँ पे एक ऐसा मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल की क्या दिखाएगी, थिकनेस, डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो दिस T will give what, thickness, और you can say molecule size। अगर हमने यहाँ पे ऑलिक एसिड यूज किया है, ऑलिक एसिड का लेयर बना है, तो दिस T शुड कम 10 to the power -9 मीटर, बिकॉज ऑलिक एसिड का मॉलिक्यूल की साइज क्या है, कितनी, अप्रोक्सीमेटली 10 to the power -9 मीटर। तो जब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे ऑलिक एसिड यूज करके, तो लास्ट में जब ये थिकनेस मेजर करेंगे तो वो क्या आएगी, 10 to the power -9 मीटर। अंडरस्टूड? कैन आई रिपीट दिस अगेन? लुक एट हियर, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। पहले हमने क्या किया, ऑलिक एसिड और अल्कोहल का सॉल्यूशन बनाया। कितना टोटल सॉल्यूशन था, 20 सेंटीमीटर क्यूब। उसमें ऑलिक एसिड 1 सेंटीमीटर क्यूब था, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड कितना था, 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। उसको वापस अल्कोहल में मिक्स किया, उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन लेके उसको डाइल्यूट किया अगेन अल्कोहल में, और वो जो नया सॉल्यूशन है वो कितना बनाया, 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो नया सॉल्यूशन बना उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड क्या होगा, पहले 1/20 था, वो वापस 20 में डाला, तो 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब। अभी ये सॉल्यूशन जो हमारे पास है 20 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें से कुछ ड्रॉप्स हम क्या करेंगे, ये वाटर सरफेस पे डालेंगे। n ड्रॉप सपोज मैंने डाले, तो वॉल्यूम कितना होगा, n इंटू वी। वी इज वॉट, वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप। वी क्या कंसिडर कर रहे हैं हम, वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप। तो एन वी वॉल्यूम होगा, तो उसमें ऑलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, NV/20 इंटू 20। जब हम यहाँ पे डालेंगे तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम अल्कोहल तो उड़ जाएगा, तो सिर्फ ऑलिक एसिड का लेयर ही रहेगा यहाँ पे। वो जो ऑलिक एसिड का लेयर रहा वो थिन फिल्म में, उससे हम रेडियस मेजर करेंगे। और इसमें वॉल्यूम ऑफ थिन फिल्म, उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड कितना है, NV/20 इंटू 20। और जो हमने रेडियस मेजर की पाई इंटू आर स्क्वायर, उससे हमको एरिया मिल जाएगा। तो वॉल्यूम अपॉन एरिया करके हमको थिकनेस मिलेगी। एंड दिस थिकनेस इज व्हाट, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, बिकॉज ये जो लेयर बनेगा वो मोनोमोलिकुलर होगा। नाउ बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट मेथड विच आई डिस्कस अर्लियर, एक एग्जाम्पल मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि उसकी एप्लीकेशन क्या है। ऐसे न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। जो मैंने अभी ऑलिक एसिड वाला एग्जांपल लेके उसमें आपको मॉलिक्यूल की साइज़ कैसे मेज़र कर सकते हो वो दिखाया, उसके बेस पे एक न्यूमेरिकल है। देखो, व्हाट इज़ गिवन, अ ड्रॉप ऑफ ऑलिव ऑयल। एक ऑलिव ऑयल का एक ड्रॉप लिया है ऑफ रेडियस 0.25 मिलीमीटर। उसकी रेडियस कितनी दी है, R इज 0.25 मिलीमीटर का एक ड्रॉप दिया है। स्प्रेड्स इनटू अ सर्कुलर फिल्म, मीन्स ऐसा वाटर का जो हमने कंटेनर लिया था, उसमें जो लाइकोपोडियम पाउडर वो सब डाला था, जो भी है, उसमें ये ऐसे सर्कुलर फिल्म के फॉर्म में स्प्रेड हो रही है। और ये जो फिल्म में स्प्रेड हुई उसकी डायामीटर दी है 20 सेंटीमीटर। डायामीटर ऑफ दिस इज 20 सेंटीमीटर।
ओके, इतना दिया है क्वेश्चन में, एस्टिमेट द साइज ऑफ द ऑयल मॉलिक्यूल, ये जो ऑलिव ऑयल है उसकी साइज मेजर करनी। लुक एट हियर नाउ, मैंने पहले ही बोला था कि इनडायरेक्ट मेथड में आप अपने लॉजिक से आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने जो लास्ट एग्जांपल दिया था उसमें हमने क्या किया था, ऑलिक एसिड को अल्कोहल में मिक्स किया था और सॉल्यूशन बनाया था। यहाँ पे वो लोग किसी के साथ मिक्स नहीं कर रहे, डायरेक्टली ऑलिव ऑयल ही यहाँ पे डाल रहे हैं, तो यहाँ पे कोई और मिक्सचर नहीं है, तो हमें वो सॉल्यूशन में उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है वो सब कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। हमें सिर्फ क्या चाहिए, थिकनेस ऑफ द ऑलिव ऑयल। यहाँ पे मोनोमोलिकुलर लेयर बना रही है सर, दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमें उसकी थिकनेस चाहिए। तो थिकनेस के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो यहाँ पे ऑलिव ऑयल का वॉल्यूम कितना होगा, उसमें अ ड्रॉप ऑफ ना, जितने ड्रॉप्स, ये जो ड्रॉप डाला है ऑलिव ऑयल का वो यहाँ पे स्प्रेड हुआ है पूरा, एक ड्रॉप, तो एक ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम यहाँ पे स्प्रेड हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप क्या आएगा, ये ड्रॉप कैसा होगा, स्फेरिकल होगा ना, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा, 1/4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप इज 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस दी है 0.25 मिलीमीटर, तो 4/3 पाई इंटू 0.25 मिलीमीटर। इफ आई कन्वर्ट दिस इन सेंटीमीटर, बिकॉज ये सेंटीमीटर में है ना 20 सेंटीमीटर, तो मैं इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ, तो क्या आ जाएगा 0.025 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑलिव ऑयल, यहाँ पे जो ऑलिव ऑयल हमने डाला उसका वॉल्यूम है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम तो मुझे मिल गया, पर अभी इसकी थिकनेस मेजर करने के लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एरिया। एरिया के लिए उन्होंने डायमीटर दिया है, तो आई कैन फाइंड आउट रेडियस। रेडियस इज इक्वल टू क्या आएगा, d/2, तो d क्या है 20 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका रेडियस। और ये सर्कुलर फिल्म है, तो उसका ये जो फिल्म का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ आई हैव टू रिप्लेस हियर, तो 4/3 पाई 0.025 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय व्हाट, एरिया। एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मुझे उसको कैलकुलेट करना है, पाई पाई कट हो जाएगा, 4/3 0.025 है, उसको मैं 25 इंटू 10⁻³ लिख सकती हूँ ना सेंटीमीटर, 25 इंटू 10⁻³ उसका क्यूब डिवाइडेड बाय क्या है, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ 4/3 25 इंटू 10⁻⁻⁹, ये 10⁻² है वो ऊपर जाएगा, तो 10⁻²। 1 सेंटीमीटर कट हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब है यहाँ पे स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर कट हो जाएगा, तो सेंटीमीटर। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 4/3 25 इंटू 10⁻⁻11 सेंटीमीटर। नाउ इफ आई कैलकुलेट दिस, then I can get 2.08 into 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट कैन आई डू, 2.08 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, तो क्या आ जाएगा 2.08 इंटू 10⁻⁹ मीटर। सो दिस इज द थिकनेस ऑफ olive oil molecule which we measure by this method.
So I think now you understood how can we apply this indirect method according to our requirement. ये एग्जाम्पल से पता चल जाएगा कि ज़रूरी नहीं कि ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन या जो भी ऐसा बनाना ज़रूरी है. हम डायरेक्टली भी ऑलिव ऑयल, जैसे यहाँ पे डायरेक्टली ऑलिव ऑयल ड्रॉप किया, वैसे भी कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.